reflection of wave. You know the phenomena of reflection. Reflection is a phenomena in which wave gets reflected, gets back, bounces back. जिस मीडियम में जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ जाती है, हम कहते हैं ये रिफ्लेक्शन हो गया। और अगर वेव अगर नए मीडियम में एंटर कर जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, वेव के केस में तीन फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव और एब्जॉर्प्शन। तो हम एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में मीन्स वेव विल गेट रीबाउंस्ड, बैक आ जाएगी इन द सेम मीडियम, देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड। Okay, there will be only change in direction. Okay, and now in this case, you have to see whether the wave is going from rarer medium to denser medium or is going from denser to rarer. What will happen to the wave? What will happen to the reflected wave? Okay, you know two types of waves, mechanical waves. उसमें हम किसकी रिफ्लेक्शन ले रही है देखना है। मैकेनिकल वेव, two types, one is a longitudinal, another is transverse. In mechanical wave, medium is required, and for transmission of wave, medium must have high elasticity, medium must possess inertia, and medium must offer least resistance. उसको रेजिस्टेंस देना ही नहीं है वेव को जाने आने में। ओके, फिर longitudinal wave travels in the form of, आपको ये भी पता है, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। एंड यू नो व्हाट इज कंप्रेशन? दैट पार्ट ऑफ द मीडियम वेयर layers come closer, pressure increases, density increases, temperature increases, okay, and volume decreases. And rarefaction is that part of the medium where pressure is small, pressure decreases, becomes less than the normal, volume increases, becomes more than the normal, temperature decreases, density decreases. Okay, so longitudinal wave, for which example is sound wave, it always travels in the form of compressions and rarefactions. Whereas transverse wave travels in the form of crusts and troughs. If you show wave like this, this is the crust where there is maximum amplitude, maximum displacement here, and this is the trough. Crust and trough. Transverse wave, which is mechanical wave, it travels in the form of crust and trough, and in this crust is this, where displacement is maximum in one direction. In case of trough also, maximum displacement, but in the opposite direction. There are two extremes, you know. But you take oscillation, there is a vibration of the particle of the medium, then it goes forward, backward, to and fro, आगे पीछे, about a fixed point, इसको mean position कहते हैं। अच्छा, इधर जा रही होती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है और एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, और वो जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसी को क्रस्ट बोलते हैं। और देन फिर जो पार्टिकल है वापस आता है, मेन पोजीशन को क्रॉस करता है, लेफ्ट एक्सट्रीम में जाता है। लेफ्ट एक्सट्रीम में भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, उसको ट्रफ बोलते हैं। ओके, तो रिमेंबर कि मैकेनिकल वेव which are of two types, longitudinal wave and transverse wave, these waves travel in the form of compression, rarefaction, and these waves travel in the form of crust and trough. Okay, otherwise I told you three types of waves: mechanical wave, number two electromagnetic wave, number three matter wave. Mechanical wave needs medium. Electromagnetic wave, they don't require any medium for their transmission. Electromagnetic wave में gamma rays, X rays, ultraviolet radiation, visible light, infrared, microwave और radio wave. ये आपको पहले बताया मैंने, 7 waves आती हैं electromagnetic wave में। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट करती है। ओके, और जो मैटर वेव है, दिस मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग materialistic particle,
मेटलिस्टिक पार्टिकल जिसका मास है, जब वो मूव करती है तो उसके साथ वेव चलती है, उसको मैटर वेव कहते हैं। ओके, जैसे कोई भी मेटलिस्टिक पार्टिकल है, लाइक मान लीजिए आपके पास रिवॉल्वर है, उसमें बुलेट है, बुलेट रेस्ट में है, जब ये मोशन में आएगी ना, बुलेट का मास है, मैटर है, ये मेटलिस्टिक है। जब ट्रिगर ऑन करोगे और वो जो बुलेट निकलेगी उसके साथ क्या चलेगा, बुलेट तो मटेरियल है, लेकिन जो मोशन में आएगा साथ क्या चलेगा, खतरा, डेंजर, मौत। उस गोली के साथ मौत जा रही है, जिसको लग गई जख्मी कर देगी, मार देगी। तो उस बुलेट के साथ क्या जा रही है, वेव। अंबानी है, उसके साथ जब अंबानी से जा रहा होगा तो उसके साथ क्या जा रही है, अमीरी, मोस्ट रिच पर्सन ऑफ इंडिया। एक भिखारी जा रहा है, यार गरीब बंदा, भिखारी मटेरियलिस्टिक है, उसके साथ जो इंप्रेशन जाता है, यार गरीब बंदा है, वो जो गरीब का इंप्रेशन जा रहा है वो मैटर वेव है। अंबानी के साथ जो अमीरी का इंप्रेशन जा रहा है वो मैटर वेव है। गुंडे के साथ बदमाशी जा रही है, गुंडा बदमाशी मार देगा थप्पड़, बच के रहो इससे यार। गुंडा तो मैटर है, मटीरियलिस्टिक है, उसका मास है, लेकिन जिस जगह वो जा रहा होता है उसके साथ क्या इंप्रेशन जा रहा होता है, यार ये बदमाश है, ये मैटर वेव है। जब कोई स्टोन है पड़ा है, कोई खतरा नहीं, हाथ में पकड़ के उसको जरा मोशन में लाओ, और जहां जहां स्टोन जा रहा है आदमी वहां से डरेगा, पीछे पीछे स्टोन के साथ क्या जा रहा है, खतरा जा रहा है, कि जिसको लगेगा वो जख्मी हो जाएगा। स्टोन मैटर है और उसके साथ जो डेंजर जा रहा है वो मैटर वेव है। वेव मीन्स एनर्जी है, एनर्जी मीन्स इंप्रेशन है, डिस्टर्बेंस है, जिसके साथ क्या जा रहा है। आपके स्कूल का 12th का मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब वो कहीं भी स्कूल में घूम रहा होगा कैंपस में, और उसके साथ क्या जा रहा है, यार हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, इंप्रेशन उसके साथ जा रहा है, ठीक है ना। वो जो बच्चा है इंटेलिजेंट वो मैटर है, मेटलिस्टिक है, लेकिन जब वो स्कूल कैंपस में घूमता है तो उसके साथ एक इंप्रेशन जा रहा होता है कि हमारे स्कूल का मोस्ट इंटेलिजेंट। ये 12th में पढ़ोगे आप, मैटर वेव, ठीक है। अभी तो हम मैकेनिकल वेव ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आप 12th में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी जाती है जो वैक्यूम में भी मूव करती है, मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन मैकेनिकल वेव वो वेव है विच नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ओके। और जब मैकेनिकल वेव मूव करती है मीडियम चाहिए, मीडियम की ईच एंड एवरी पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज ए पीरियोडिक मोशन, ओके। तो उसमें फिर जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो मीडियम के अंदर कंप्रेशन रेरिफेक्शन बनते हैं, और जब ये ट्रांसवर्स वेव चलती है जो कि मैकेनिकल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो क्रस्ट और टॉप बनते हैं। पॉइंट। तो हम इन वेव का, मैकेनिकल वेव का जिसमें मीडियम चाहिए, उसकी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले तो वेव प्रोग्रेसिव वेव है। आप कैसे दिखाते हो प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के, ये वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है। चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव है, बट मैकेनिकल वेव है, जा रही है। अब कैसे जा रही है, प्रोग्रेसिव वेव है, ये उसकी एम्पलीट्यूड है, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, यहाँ उसकी वेवलेंथ है, यहाँ उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है कि अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है। गेट माय पॉइंट। अब ये रिफ्लेक्ट होगी। अब सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक ये रोप है और ये आगे डेंसर मोटी रस्सी है, ये यहां से फिक्स है, ये यहां से फिक्स है। एज कंपेयर टू दिस, इसको हम रेयर मानेंगे, तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। एक पतली रोप है, एक मोटी रोप है। अगर आप इसको अपने हाथ में पकड़ के इसमें किंग्स पैदा करो, दूसरा सिरा यहाँ में आपने दीवार के साथ यहाँ रिजिड सपोर्ट के साथ इसको फिक्स किया हुआ। आप डिस्टर्बेंस भेजना चाहते हो, रोप का एक सिरा उधर, रोप भी दो टाइप की है, एक मोटी है, एक पतली है, ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम है। आप इसमें डिस्टर्बेंस, तो इसमें किंग पैदा होगी। रस्सी की शक्ल देखो, जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे ऐसे ऐसे करेंगी, किंग बनेगी। तो मान लीजिए ये
यहां से नया मीडियम शुरू हो गया, ये वेव जा रही थी, प्रोग्रेसिव वेव थी। गट में पॉइंट। हम मैं ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा, मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन होगी इसके साथ, रिफ्रैक्शन नहीं ना। एनर्जी को इस मीडियम में भी जाना है। जब आप रोप का इस सिरे को पकड़ के आप इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, इसमें जो डिस्टर्बेंस आएगी यहाँ भी आएगी और यहाँ से मोटी रस्सी में भी ट्रांसमिट भी होगी, लेकिन यहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, तो when wave goes from rarer to denser, remember case number 1, when wave goes from rarer medium to denser medium, what will happen during reflection? पतली रस्सी से मोटी रस्सी में वेव जा रही है और यहाँ मीडियम नया शुरू हो गया है, यहाँ ट्रांसमिशन भी होगा डिस्टर्बेंस का और यहाँ रिफ्लेक्शन भी होगा। मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। सर जिस पॉइंट पे न्यू मीडियम शुरू हो रहा है वहाँ पे जो एनर्जी पहुंची है, मतलब जो ये पहले वाला जो पतली रस्सी है, तो एनर्जी 50-50 हो जाएगी, 50 इधर चल जाएगी, बाकी इधर चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जी का रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, कुछ अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, लेकिन वो नए मीडियम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा तीनों में से फिनोमेना ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी या रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी या अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन को आप इग्नोर कर दो, बाकी रह गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, मैं सिर्फ उसमें भी रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो वेव इधर जा रही थी, जो डिस्टर्बेंस इधर जा रहा था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। व्हाट हैपेंस टू दैट? ओके, ये इंसिडेंट वेव है, मान लो ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव प्रोग्रेसिव वेव है, गिवन बाय दिस y is equal to a sin omega t minus kx. This is incident wave. No, what is the reflected wave? यहाँ से ये वेव रिफ्लेक्ट होगी। Time to charge me. Will be y is equal to, एक तो जो वेव जा रही थी रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, देयर इज ए चेंज ऑफ डायरेक्शन। आ गया ना, फेज में डिफरेंट, डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होने के साथ क्या होगा? मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव थी और ये कंप्रेशन यहाँ आया कि क्या कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होके कंप्रेशन ही जाएगा या कंप्रेशन का रेडिफेक्शन बन जाएगा। पहला केस मैंने लिया है, वेव इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। प्रोग्रेसिव वेव, इंसिडेंट वेव ये है, ये यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और केस क्या है? ट्रांसमिशन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। व्हाट विल हैपन टू द रिफ्लेक्टेड वेव? रिफ्लेक्टेड वेव ये होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। What do you mean by this? This is incident progressive wave. Wave is going from rarer to denser medium. I have taken the example that there are two ropes, one thin, another thick. Free end to just produce disturbance, and rigid end यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा। ओके, लेकिन यहाँ जहाँ नया मीडियम शुरू हुआ है वहाँ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है। जो डिस्टर्बेंस है यहाँ से पतली रस्सी से मोटी रस्सी में भी जाएंगी। जो किक्स है, जो डिस्टर्बेंस है, जो वाइब्रेशन है, जो आपने इस एंड से प्रोड्यूस की है वो यहाँ आई है, यहाँ इसके साथ रिफ्लेक्शन भी होगा इस एनर्जी का और यहाँ ट्रांसमिशन भी होगा। मैं ट्रांसमिशन भी बोल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन तो मैं ले ही नहीं रहा, सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव वेव थी, जो इंसिडेंट वेव थी, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इसमें क्या देखा? इट वॉज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव इज कमिंग बैक, देयर इज ए चेंज ऑफ डायरेक्शन। जो प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स जा रही थी और ये तो अलोंग नेगेटिव एक्स आ गई ना, वापस आ गई। इसलिए यहाँ माइनस के एक्स का प्लस के एक्स बन गया। प्लस पाई का क्या मतलब है कि एक फेज में डिफरेंस आ गया। एक तो डायरेक्शन चेंज हुई, एक फेज से डिफरेंस आया।
का फेज डिफरेंस आएगा, वो भी पाई का, जब वेव रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी। इसका मतलब क्या है कि when ray goes from rarer to denser medium, it undergoes a phase change of 180 degree. What do you mean by this? कि अगर यहाँ इस एंड पे कंप्रेशन आएगा ऐसे, तो वो रेरिफैक्शन बन के जाएगा। This is what I mean by phase difference आ गया पाई का। Compression will be reflected as a rarefaction. Rarefaction will be reflected as compression. And if it is a case of transverse wave, crust will be reflected as a trough. Trough will be reflected as crust. Trough का crust बन जाएगा, crust का trough बन जाएगा। ओके, अगर इस मीडियम पर, जहां मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, was traveling in the form of compression, rarefaction, which are formed alternatively, यहाँ compression आया और जब रिफ्लेक्ट हुई वेव तो rarefaction बन गया, चला गया। This is what you mean by a phase difference of pi आ गया। Now let us take second case. Case 2 में क्या होगा? Let us say wave goes from denser medium to rarer medium. इसमें रिवर्स है, आपने पहले मोटी रस्सी ले ली, फिर पतली रस्सी ले ली। ओके, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और यहाँ आपने डिस्टर्बेंस पैदा की है, यहाँ चेंज ऑफ मीडियम है, डेंसर टू रेयर। यहाँ जो वेव गई थी वो ये थी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। लेट अस से यहाँ कंप्रेशन आया, इंस्टेंट वेव में कंप्रेशन आया, तो रिफ्लेक्टेड में क्या जाएगा? कंप्रेशन ही जाएगा। कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन when wave will go from denser medium to rarer. Make it very clear. I am taking the reflection of wave. Now there are two possibilities: whether wave is going from rarer medium to denser, or it going from denser medium to rarer. Number one. Number two, I am taking only the phenomena of reflection, not the refraction, not the transmission. जहाँ मीडियम चेंज हुआ है, नया मीडियम रेयर मीडियम था, डेंसर शुरू हो गया, यहाँ इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे वेव रिफ्लेक्ट होती है, और रेयर टू डेंसर जाते समय अगर कंप्रेशन यहाँ आता है तो रेरिफैक्शन बन के जाता है। इट कॉजेज द फेज डिफरेंस ऑफ पाई अलोंग विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये वेव ऐसे जा रही थी, कंप्रेशन बन के रेरिफैक्शन आई है। इन कंप्रेशन रेरिफैक्शन में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। आगे देख लो, कंप्रेशन, देन रेरिफैक्शन, देन अगेन कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन। यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है बिटवीन कंप्रेशन रेरिफैक्शन, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। ओके, लैम्डा बाय 2 का पाथ में डिफरेंस है, तो इसका फेज बनाओ। आपके पास एक रिलेशन है, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा into path difference. You have this converter, आपको बताया गया 2 pi by lambda multiplied by path difference is equal to phase difference. तो I have path difference lambda by 2 between crust and draft, or between compression and rarefaction. Compression गया था, rarer to denser wave जा रही थी, रिफ्लेक्ट हुई, कंप्रेशन जो रेरिफैक्शन बन के रिफ्लेक्ट हुआ। मैथमेटिकली इसको कहते हैं पाई का फेज डिफरेंस आ गया। फिर इसके अलावा और क्या हुआ वेव के साथ? जो जा रही थी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है, देयर इज चेंज ऑफ डायरेक्शन। जो पॉजिटिव एक्स में जा रही थी रिफ्लेक्ट होकर वो माइनस एक्स में जाने लग गई है, इससे चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो इसलिए साइन यहाँ से माइनस का प्लस हुआ है, माइनस का प्लस होना चेंज ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन क्रस्ट का ट्रफ बनना ये चेंज ऑफ पाई है।
क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। और केस कौन सा लिया जा रहा है? केस 1, वेव गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, प्रोग्रेसिव वेव वाज गोइंग, दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स अ चेंज ऑफ डायरेक्शन. जैसे मिरर होता है, मिरर में रे जाके स्ट्राइक करती है और फिर वो वापस आती है, तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करे तो उसी डायरेक्शन में वापस आती है. ओके. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है कि उसमें 8000 अल्फा भेजे थे, तो एक अल्फा ऐसा जो न्यूक्लियस की लाइन में जा रहा था और वहीं से वापस आ गया, न्यूक्लियस को हिट नहीं कर पाया. रिपल्सिव फोर्स इतना था बिटवीन अल्फा एंड न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, तो उससे वो गया, जिस रास्ते जा रहा उसी रास्ते पर वापस. मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहीं से मैं ऐसे वापस आ जाऊँ, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन. ओके. जिस स्पीड से जा रहा हूँ मैं उसी स्पीड से वापस आ जाता हूँ. मान लो आगे दीवार आ गई, मैं टकराया, मैं वापस आ गया, रिफ्लेक्शन हो गई. लेकिन क्रस्ट का ट्रफ बन गया, ट्रफ का क्रस्ट बन गया, ये फेज डिफरेंस है, ये डायरेक्शन में डिफरेंस है. ओके. प्रोग्रेसिव वेव जा रही थी, रेयर टू डेंसर जा रही थी, और ये जो जंक्शन जहां मीडियम नया आया है वहां रिफ्लेक्शन भी हुई है और वेव आगे ट्रांसमिट भी हुई है. पतली रस्सी से मोटी रस्सी में भी डिस्टर्बेंस जाएगा, लेकिन जहां मोटी रस्सी शुरू हुई है वहां से डिस्टर्बेंस वापस भी आएगा, तो रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा. मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की बात कर रहा हूं. ठीक है. रिफ्लेक्शन में चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, इसलिए माइनस के एक्स का प्लस के एक्स बन गया. नंबर 2, जब वेव गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर and wave is longitudinal, it travels in the form of compression rarefaction. When compression will strike over here, when compression is incident at this point, it will be converted into rarefaction by coming back with the change of direction. Clear? अब second case, when wave is going from denser medium to rarer medium, इसका reverse, मोटी रस्सी से पतली रस्सी में. यहाँ आपने इसको पकड़ना है, हाथ में इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करनी है, डिस्टर्बेंस भी वेव उसको भेजना है. ये डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम. प्रोग्रेसिव वेव ये है, ये रिफ्लेक्ट होगी, अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और यहां अगर कंप्रेशन आया है विल बी टर्न बैक एज कंप्रेशन. देयर इज नो फेज डिफरेंस ऑफ पाई, देयर विल बी ओनली चेंज ऑफ डायरेक्शन. If this is the incident wave, then the reflected wave will be given by y is equal to a sin omega t plus k. कोई डाउट है तो बताओ. नो सर. और मैंने यहाँ बताया कि कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन. कब? when wave goes from denser to rarer. There is only change of direction, there is no change of phase, because crust is being reflected as crust, and trough and this rarefaction will be reflected as rarefaction, crust will be reflected as crust, and crust will be reflected as crust, trough will be reflected as trough in this case. Whereas in this case, when wave goes from rarer to denser, compression will be reflected as rarefaction, rarefaction will be reflected as compression. Crust will be reflected as trough, trough will be reflected as crust. Okay? So when compression is being reflected as a trough, it causes a phase difference of pi, because between crust and trough there is a path difference of lambda by 2. और यहाँ पार्ट डिफरेंस का आप फेज डिफरेंस बनाओ, यहाँ लैम्डा बाय 2 डालो, लैम्डा बाय 2 तो लैम्डा पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई फेज डिफरेंस आ गया. You have a converter, you can convert phase into path and path into phase, and you know that. Are you charging me, or will gonna delete all your fucking games? Separated by distance lambda by 2, and the corresponding phase difference is pi only. तो यहाँ पाई फेज डिफरेंस आया है, क्योंकि क्रस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर रेरिफेक्शन बन के गया है, या कंप्रेशन रेरिफेक्शन बना है या क्रस्ट ट्रफ बना, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ले रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं. समझ में आ गया? ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव
two possibilities. Wave may go from denser to rarer, it may go from rarer to denser. And what will happen, or what will be the changes in the wave after reflection? कोई doubt है? No, sir. Okay. Then last time I told you the special case of superposition, that is formation of standing wave. Okay? Standing wave. उसको थोड़ा और डिटेल में लेंगे, थोड़ा आपकी नॉलेज भी टेस्ट करेंगे. स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन. Standing wave formation. Told you superposition. What is superposition? A phenomena in which two or more waves traveling simultaneously and independently, not knowing that other wave is also going, they reach at a point in the space at the same time. They cause redistribution, modification in the redistribution of energy according to law of conservation of energy. And the final result is either constructive superposition or destructive. Okay? So this was the phenomenon. Now there were three cases of superposition. One was interference. Second was a standing wave formation or stationary wave formation. Third was formation of beads. Okay? So you studied interference in detail. In this, two identical waves were required going in the same direction. Then in second case, standing wave formation, you require two identical wave coming from opposite direction. तो हमने ये केस लिया था, one wave was going in positive x direction, another wave was coming from opposite direction. Y2 is equal to A sin omega t minus kx. Two waves, they are identical, having same amplitude, same frequency, same wavelength, but directions are opposite. ये किधर जा रही है? अब क्या मतलब वही वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है ना? तो ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ऐसा कब होगा? यहाँ कोई फेज डिफरेंस नहीं आया. इसका मतलब क्या है कि क्रस्ट रिफ्लेक्ट होके क्रस्ट ही आया है, हाँ जी, ट्रफ रिफ्लेक्ट होके ट्रफ ही आया है, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होके कंप्रेशन ही बना है, रेरिफेक्शन रिफ्लेक्ट होके रेरिफेक्शन ही बना है. ऐसा कब होता है? जब वेव डेंसर से रेयर में जाती है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, whether there will be a change of pi, phase difference of pi, or no change in the phase difference. But there must be change in direction during reflection. Direction तो पक्का change होगी. phase change होता है कि नहीं होता, डिपेंड करता है कि वेव डेंसर से रेयर या रेयर टू डेंसर जा रही थी. अब यहाँ क्या देखा? टू वेव्स कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. वेव्स आर आइडेंटिकल, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, बट दे आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. And they reach at a point P at the same time. And this phenomena is superposition. And when two identical waves coming from opposite side, they superimpose, the phenomena is standing wave formation. Okay? And then according to principle of superposition, आपने क्या किया था? A new wave is formed. Displacement of the new wave is equal to vector sum of the displacement of individual superimposing wave. यही किया था ना? Yes. फिर हमने इनका वेक्टर सम लिया था. क्या आया था? याद करो, 2a cos kx sin of omega t. This was the resultant wave. ये हमने लास्ट टाइम किया था. This is the resultant wave, or you can say this is the standing wave. Expression for standing wave. Standing wave is a special case of superposition in which two waves which are identical, traveling independently, simultaneously, coming from opposite direction, they reach at a point in the space at the same time.
and they cause modification in the redistribution energy according to law of conservation of energy. And the result in this case will be formation of node and antinode. Node was the point where displacement was zero, pressure was maximum, particle was not free to vibrate. ये आपको बताया था लास्ट. Antinode, that part of the medium of that particle of the medium where pressure is minimum, displacement is maximum, particle is free to vibrate. Okay? If you take, let us suppose a string fixed at both the ends, and let us say string is of length L, and you send a wave, gets reflected, अगर ये क्रॉस साइड ट्रफ आ गया, अगर ये कंप्रेशन है तो रेडिफेक्शन आ गया. अब ये वेव जा रही थी, ये डेंसर मीडियम था, ठीक है ना. डेंसर मीडियम में फेस डिफरेंस पाई आएगा, कंप्रेशन रेडिफेक्शन बन के रिफ्लेक्ट होगी, ध्यान रखना. क्रस्ट ट्रफ बन के रिफ्लेक्ट होगा. अभी आपको बताया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. ओके, जो फिक्स ये रिजिड सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, ये डेंसर है. बीच में तो स्ट्रिंग थी, वो रेयर थी एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा. फिक्सिंग का मतलब क्या है कि यहाँ जो स्ट्रिंग है इज नॉट अलाउड टू वाइब्रेट. ये तो नोड बन गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो. स्ट्रिंग इज नॉट permitted to vibrate. That part where displacement is zero, pressure is maximum. क्योंकि यहाँ आपने इनको टाइट किया हुआ है, बांध रखा है, स्ट्रिंग को वाइब्रेट नहीं कर सकती. इलेक्ट्रिक गिटार में यहाँ स्क्रू लगा के इसको टाइट किया जाता है. ओके, तो यहाँ नोड बना, ये भी नोड है. यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एंटी नोड है. स्ट्रिंग की लेंथ एल थी, ये प्रोग्रेस वेव थी, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे पहुंची, सुपरपोजिशन हुआ, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक नई वेव बन गई. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? व्हेन टू आर मोर वेव्स traveling independent simultaneously, they reach at a point in the space at the same time, new wave is found. Displacement of the new wave is equal to vector sum. And we took the vector sum of these two waves. We got this vector sum. Okay? And this is the standing wave, stationary wave. This is the resultant wave. And if you compare this resultant wave with the superimposing wave, you will find the resultant wave has same frequency as that of superimposing wave. Same frequency. Okay, but amplitude is different. ये amplitude है of the resultant wave. So A, which is 2A cos kx, you can write this as 2 pi by lambda into x. You know K is 2 pi by lambda. Clear? Here x is 0. वेव यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे इधर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी. वही वेव रिफ्लेक्ट हुई है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है. पाई का फेस डिफरेंस आना है, क्रस्ट में ट्रफ बन के जाना है. ये क्रस्ट गया लेकिन वापस ट्रफ बन के आया. फेस डिफरेंस ऑफ पाई, डायरेक्शन भी चेंज हुई. क्रस्ट इधर जा रहा था, ट्रफ इधर, कंप्रेशन इधर जा रहा था, रेडिफेक्शन इधर. डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हुआ, पाई फेस डिफरेंस आया. ओके, डायरेक्शन चेंज हुई. तो यहाँ x 0 है, यहाँ अगर x 0 पुट करो तो एम्पलीट्यूड कितनी आएगी? यहाँ x 0 पुट करो 1 आ जाएगी. 2a cos 2 pi का लैम्डा इनटू x है, वो 1 हो जाएगा, 2a आ जाएगी. जी. अगर x 0 है, यहाँ x 0 है, तो यहाँ x कितना है? Here x is equal to L. And you know what is the difference between
या डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाय 2। अब जहां ये एंटी नोड बना है यहां x कितना है, लैम्डा बाय 4। यहाँ x 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू L है, जहाँ एंटी नोड बना है x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में जो सेपरेशन है वो लैम्डा बाय 2 है, और एंटी नोड इज इन द मिडल ऑफ टू कंसेक्यूटिव नोड। तो ये लैम्डा बाय 2 है तो ये लैम्डा बाय 4 है। ओके, और x जो है यहाँ से यहाँ जाते हुए वेरी कर रहा है, यहाँ x 0 है, यहाँ XL है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव है, समझ में आया? यहाँ एम्पलीट्यूड कितनी है, जहाँ एंटी नोड बना है वहां एम्पलीट्यूड 2a होगी, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि नोड है। नोड का क्या डेफिनेशन है, नोड इज दैट पार्ट ऑफ द मीडियम वेयर pressure is maximum, displacement is 0, particle is not free to vibrate। यहाँ तो आपने फिक्स कर रखा है y 0 है, y 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। y 0 है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, और यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एंटी नोड है। एंटी नोड में यहाँ जो y होगा वो 0 होगा, लेकिन यहाँ जो y होगा वो 2a होगा, 2a ये वाला, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हुआ, 2a। a क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरइम्पोजिंग वेव, तो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो गई। ओके, एक यूज ऑफ कॉमन सेंस कि एम्पलीट्यूड, ये जो एंटी नोड है यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, प्रेशर मिनिमम है, पार्टिकल इज फ्री टू ऑसिलेट। ओके, तो फिर ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी। कॉस की मैक्सिमम 1 होती है ना, अब कॉस अगर 1 हो गया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, वो कितनी होगी, 2a। और जहां नोड बना है वहां कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 0 है। तो ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो ये भी तो 0 ही होगा। एट माय पॉइंट। तो जहां ये दो नोड बने हैं उनके एग्जैक्टली मिडल में एक एंटी नोड बना है। हमने एक स्ट्रिंग का केस लिया है, स्ट्रिंग के दोनों एंड्स हमने फ्री कर रखे हैं। ओके ना, दोनों एंड हमने फिक्स कर रखे हैं, तो यहाँ दोनों जगह नोड बना रखे हैं। ओके, और ये हमारा एंटी नोड है जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। आप आर्गन पाइप लेते हो ना, बंसरी लेते हो, तो आपने देखा होगा यहाँ होल्स होते हैं। और जो फ्लूट प्लेयर होता है उसको ये पता है कि मैं कैसी साउंड निकालना चाहता हूँ, यहाँ से ब्लो किया जाता है, यहाँ फिंगर्स होती है, यहाँ होल्स होते हैं। अब जिस होल के ऊपर आपने फिंगर रख दी, वहाँ के फ्लूट के अंदर जो एयर है जिसको फोर्सफुली वाइब्रेट करा रहे हैं, जहाँ आपने फिंगर रख दी होल के ऊपर, वहाँ कह दिया तुमने वाइब्रेट नहीं करना भाई, नोट बन जाओ। जैसे उंगली हटाई है ना, उस होल वाली जो एयर थी उसको कह दिया यू नोट आर फ्री टू वाइब्रेट, एंटी नोट बन गया। तो नोट एंटी नोट बनाना फ्लूट प्लेयर के हाथ में है, कहाँ होल को बंद करना है, कहाँ उठाना है। नोट एंटी नोट बनने से जो Charge me now, you motherfucking piece of shit. जो सुर निकलेंगे डिफरेंट निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑर्गन पाइप्स हैं वहाँ भी हम स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट लेते हैं। जो हमारी वायर है गिटार के अंदर, वहाँ भी स्टैंडिंग वेव बनती है, स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होती है। जहाँ आपने वायर के एंड्स को स्क्रू से टाइट कर दिया, नोड बना दिया, बीच में प्लग किया, बीच वाली स्ट्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट, और जहाँ फिक्स कर दिया नॉट टू वाइब्रेट, नोड बना दिए। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी नोड, हाउ मेनी एंटी नोड, दैट विल डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे
मुझे क्यों वीडियो 40 मिनट की होगी, 2 मिनट तो Okay. This is string of length L, let us suppose, is made to vibrate as a whole. पूरी की पूरी वाइब्रेट कराई जा रही है एक ही टुकड़े में. This is node, antinode, length of the string is L, and here there will be transverse vibration produced in the string. The velocity of transverse vibration is T by M under root. T is the tension and M is mass per unit length. This is also called linear mass density. Mass per unit length. Velocity of transverse wave, V stands for velocity of transverse wave in a string. And you know, this is tension. That means for transmission of transverse wave in a string, tension is must. वायर मस्ट बी टाइट. अगर वायर लूज है आप प्लग करेंगे उसमें डिस्टर्बेंस नहीं जाएगा, वेव मूव नहीं करेगी. जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आपको मीडियम चाहिए, इसकी हाई वेलोसिटी होनी चाहिए. और यहाँ ट्रांसवर्स वेव के लिए स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जरूरी है. बिना टेंशन के ट्रांसवर्स वेव की प्रोपेगेशन नहीं हो सकती. जैसे मैकेनिकल वेव की ट्रांसमिशन बिना मीडियम के नहीं हो सकती. साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन. इसके लिए मीडियम चाहिए. इसकी वेलोसिटी हाई होनी चाहिए, फ्रिक्शन उसका मिनिमम होना चाहिए और उसका इनर्शिया हाई होना चाहिए. मीडियम की क्वालिटी है फॉर वेव मोशन. लेकिन ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग is not possible. Its propagation is not possible without tension. Tension होगी तो वेव मूव करेगी. ये फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग. एंड V is equal to n lambda. True for every wave. इनको आप कंबाइन करो. n lambda will be T by M under root. And here frequency will be 1 over lambda T by M under root. Okay, and here you know between two conductive nodes the separation is lambda by 2. String is made to vibrate as a whole in one segment. इसके किनारों पे नोड्स हैं, बीच में एंटी नोड है. पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, पूरे का पूरा स्ट्रिंग एक ही टुकड़े में. तो ये दो नोड है. नोड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्डा बाय 2. But this distance is also equal to the length of the vibrating part of the string. So L is equal to lambda by 2 हो गया. This is equal to this. तो L is equal to lambda by 2, तो lambda will be equal to 2L. अब इस फॉर्मूले में lambda को आप 2L लिख दो, तो you will get this relation. And is 1 over 2L T by under root. This is the frequency with which this string is vibrating. And here string is vibrating in one segment. Length of the string here is equal to half of lambda. Okay, and lambda will be equal to 2L. And if this lambda is equal to 2L, then frequency comes out to be L is equal to 1 over 2L T by M under root. This frequency is the lowest frequency. A string is made to vibrate with minimum frequency, that is this. And string will vibrate with minimum frequency when the string is made to vibrate as a whole in one segment. पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक ही टुकड़ों में वाइब्रेट कराओगे तब वो कम से कम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी. और इस फ्रीक्वेंसी का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक.
first harmonic. This is the lowest frequency. फर्स्ट हार्मोनिक। इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद विच ए स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट। कम से कम फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग को अगर वाइब्रेट कराना चाहते हो तो उसको पूरे के पूरे स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराओ एक ही सेगमेंट में, एक ही टुकड़े में, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, तो उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे या हम उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है। और अगर इसी स्ट्रिंग को सेम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L now is made to vibrate in two segments, इसके दो टुकड़े कर दो, हाफ हाफ, तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगी। अगर ये इंस्टेंट वेव है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है विद फेज चेंज ऑफ पाई। अगर ये क्रस्ट है तो ये ट्रफ बन के वापस आ रही है। ये अगर ट्रफ था तो ये क्रस्ट बन के वापस आएगा। यहाँ ये जो डॉटेड है ये रिफ्लेक्टेड है, जो बोल्ड है ये इंसिडेंट है। तो ये इंसिडेंट वेव है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, लेकिन ये क्रस्ट बन के रिफ्लेक्ट होके जा रही है। Transverse wave always travel in the form of crust and trough. Okay, and at a denser medium, trough will be reflected as crust will be reflected as trough. There will be a phase difference of pi along with the change of direction. तभी पहले आपको रिफ्लेक्शन की बात कराई है, समझ में आया? अब सेम लेंथ वाइब्रेटिंग इन टू सेगमेंट्स, एक ये नोड बन गया, ये भी नोड है, ये भी नोड है, एंटी नोड, एंटी नोड। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड इज लैम्डा बाय 2। ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, तो पूरा कितना हो गया? लैम्डा। दैट मीन जो L है इन दिस केस इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, नो इफ make use of this formula, and here lambda is equal to L when the string is made to vibrate in two segments. The frequency will be, what will be the frequency now? It will be 1 over L T by M under root for this case. So the lambda is equal to L. Okay, this frequency is different from this. Yes. Okay, if it is N, let it be N1. And to N1, how it is related to this? If you multiply what is this? Fundamental frequency. 1 over 2 T by M under root बैटरी is खत्म।